أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہو۔ ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنی کلاس۔ جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں اسم کے 4 پہلو۔ چلیں ایک بار شروع سے دیکھتے ہیں۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں۔ بیسک انگریڈینٹ کیا ہوا؟ حروف اور حرکات، ان کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں۔ اب لفظ جو کہ بامعنی تھے انہیں کلمہ کہتے ہیں، اور چونکہ ہمارا فوکس بامعنی ہی الفاظ پہ ہے، میننگ فل ہی الفاظ پہ ہے، تو کلمے کی 3 قسم ہیں جس کو کہ انگلش میں پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں، کہ ڈفرنٹ ٹائپس آف ورڈس۔ آپ ڈکشنری دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں الفاظ ہوتے ہیں، تو اب ان کو کیسے پڑھا جائے؟ ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے تو نہیں پڑھا جا سکتا، تو طریقہ وہی کلاسیفیکیشن کا یوز کیا جاتا ہے کہ ایک طرح کے الفاظ کا ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے، اور انہی ڈفرنٹ گروپس کو پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں، اور یہاں پہ اردو میں ہم قسم کہہ رہے ہیں۔ تو عربک میں سارے الفاظ صرف 3 گروپ میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، تو آپ کو صرف 3 طرح کی چیزیں پڑھنی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اسم آج کل، اور کسی بھی اسم کو اب صحیح طریقے سے پہچاننے کے لیے، جس سے ہم اس کا صحیح ترجمہ کر سکیں، صحیح سمجھ سکیں، ہمیں قرآن اور حدیث ہماری نیت ہے، ہمارا مقصد ہے، تو ہمیں اس لیے بہت باریکی سے چیزوں کو سمجھنا ہے، بہت اچھی طرح چیزوں کو سمجھنا ہے، جس سے ہم بالکل صحیح ترجمہ کر کے صحیح قرآن اور حدیث کے الفاظ کو صحیح سمجھ سکیں۔ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف 4 اینگل سے اسم کو دیکھنا ہے۔ جیسے دوسری لینگویجز میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جینڈر جاننا ہوتا ہے، ہمیں اس کا نمبر جاننا ہوتا ہے، ہمیں اس کی پوزیشن سمجھنی ہوتی ہے کہ اس سینٹینس میں وہ کیا رول ادا کر رہا ہے۔ بالکل وہی عربک میں بھی ہے، بس یہاں نام اور ٹرمز ہم عربک کے استعمال کریں گے۔ تو اسم کو پہچاننے کے لیے ان 4 اینگل سے، ان 4 زاویوں سے ہمیں دیکھنا ہوگا، یا کہہ لیں ان 4 اسکیلز پر ہمیں ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے میں نے اعراب اس لیے لیا، عام طور پہ لوگ جنس سے شروع کرتے ہیں کیونکہ سب سے آسان جنسی ہوتا ہے، میل فیمیل وہ ہر بچہ بھی بچپن سے سمجھ رہا ہوتا ہے، بوائے گرل سب کو پتا ہوتا ہے، تو اس لیے جنس سے شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے اپنے لیسن پلان میں اعراب اس لیے رکھا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اعراب کا سمجھنا خاص کر، جیسا بار بار میں کہہ رہی ہوں، قرآن اور حدیث کے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ کام کرنے والا کون ہے اور کام کو ریسیو کرنے والا کون ہے، اور کسی اسم کا کس سے تعلق بیان کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں اعراب میں پتا چلتی ہیں۔ اگر ہم نے یہ صحیح نہیں سمجھا تو ہم فاعل یعنی کام کرنے والے کو، مفعول یعنی اس کے اوپر کام ہوا ہے وہ سمجھ لیں گے، اور پوری کی پوری آیت نہ صرف غلط ہو جائے گی بلکہ شرک کی طرف چلا جائے گا، تو کتنی بڑی بات ہو گئی۔ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اعراب کو پہلے لیں گے اور اس کو ہم سمجھ لیں گے۔ اگر ہم اعراب کا ٹاپک کرتے وقت 50% بھی سمجھ لیں گے تو ہم جب جنس کریں گے تو اعراب یہاں بھی ریپیٹ ہوگا۔ جب عدد کریں گے تو اعراب کا یہ 3 کالم جو آپ پچھلی کلاس میں دیکھ رہی ہیں، یہ سب عدد اور وسعت آخر تک چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہنچتے پہنچتے اعراب آپ کے لیے ایسا ہو جائے گا جیسے آپ کا اپنا نام انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو پتا ہے کہ کتنے اسما ہیں، ہر چیز اسم کی کیٹیگری میں ہے، نہ صرف نام ہے، چیزیں ہیں، بلکہ فیلنگز ہیں، آئیڈیاز ہیں، ہر چیز اسم ہے۔ فعل اور حرف کو نکالنے کے بعد جتنی چیزیں بچی وہ سب اسم ہے۔ اب یہ اسم کس طرح سے ان تینوں حالتوں میں شکل اختیار کرتے ہیں، اس پہ 3 گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے اس کو ڈیٹیل میں کیا تھا، آج کی کلاس میں بس ہم اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ اسما ہیں
वो तीनों, ये जैसे आप ये टेबल देखेंगे, यहाँ पे ये टेबल है आपकी, तो कुछ अस्मा है वो तीनों हालतों में, ये एक हालत हुई, ये दूसरी हालत हुई, ये तीसरी हालत हुई, ये 3 डिफरेंट शक्लें इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे अस्मा को फ्लेक्सिबल कहते हैं, है ना। फ्लेक्सिबल हुई है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आसानी से यहाँ भी चेंज हो गए, यहाँ भी चेंज हो गए, और इधर भी इन्होंने अपनी शक्ल बदल ली। ये कुछ अस्मा है वो सिर्फ 2 शक्ल इख्तियार करते हैं, और मैंने 2 शक्ल से आपको कहा था कि जब 2 शक्ल आप देखें तो 2 वर्ड वाला, क्योंकि गैर मुंसरिफ ये थोड़ा सा हैवी वर्ड लग सकता है, तो जब 2 शक्ल देखें तो 2 शक्ल के साथ 2 वर्ड वाला गैर मुंसरिफ, ये सिर्फ 2 शक्ल इख्तियार करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम में, मैं आगे वाला ही ले लूं, फर्स्ट कॉलम में तो ये इब्राहिमू की शक्ल लेंगे, लेकिन नसब में जब इब्राहिमा पे आएंगे तो जर में उसी शक्ल में रह जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक शक्ल इख्तियार की, यहाँ पे दूसरी शक्ल इख्तियार की, और थर्ड हालत में भी ये दूसरी ही शक्ल पे रह जाते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की है, वहां पे हम कुछ इमेजेस वगैरह भी लेके आए थे, और जिनकी मिस हुई है तो वो प्लीज लेसन नंबर 6 जरूर देख लें। अब ये तो, इसकी तो हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर ली थी, और चले एक बार प्रैक्टिस फिर कर लेते हैं, बुला लेते हैं जल्दी से हम नफीसा को बुला लेते हैं। नफीसा आप आ जाएं जल्दी से। जी जी, आप हमें, ये शम्स हमने आपको लफ्ज दिया है, अब आप इस पे तनवीन लगा के, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल अस्मा जो हैं वो तनवीन लेते हैं, तो आप इनकी रफा नसब और जर की हालत बताएं यहाँ पे इन कॉलम में। शमसुन, जी, शमसन अलिफ के साथ, माशाअल्लाह, वेरी गुड, और शमसिन। वेरी गुड। जैसे इन्होंने अभी बताया कि नसब की हालत में अलिफ के साथ और अलिफ के बगैर जरूर बोलना है। चलिए आगे करिए। ऐनुन, जी, आइनन अलिफ के साथ, हम्म, आइनिन। वेरी गुड, माशाअल्लाह। समाउन, हम्म, समाअन अलिफ के बगैर, जी, समाइन। वेरी गुड, जजाउन, जजाअन अलिफ के बगैर, जजाइन। वेरी गुड, माशाअल्लाह। तो यहाँ पे एक्सेप्शन, जो सेकंड एक्सेप्शन था वो यहाँ पे इनको नजर आया कि अलिफ और हमजा जब होता है तो तनवीन, नसब की हालत में जब फतहा तनवीन आती है तो यहाँ पे अलिफ का इजाफा नहीं किया जाता, अलिफ का इजाफा नहीं होता। ये था हमारा सेकंड एक्सेप्शन। और फर्स्ट एक्सेप्शन हमारा ये था जो यहाँ आपको नजर आ रहा है। इसको भी पढ़ दे नफीसा, आप ही पढ़ दे। जन्नतुन, जी, जन्नतन अलिफ के बगैर, जन्नतिन। आयतुन, आयतन अलिफ के बगैर, आयतिन। शहवतुन, शहवतन अलिफ के बगैर, शहवतिन। माशाल्लाह, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। तो आपने देखा कि फ्लेक्सिबल अस्मा ये रफा की हालत में पेश वाली तनवीन लेते हैं, नसब की हालत में ये जबर वाली तनवीन लेते हैं, और ज्यादातर अस्मा ये नसब की हालत में जब फतहा तनवीन लेते हैं तो अलिफ का इजाफा भी इनके साथ होता है। और मैंने कहा इन चीजों को आप अपने इल्मुल यकीन को आइनुल यकीन में बदलें। जब आप कुरान में देखें तो जो मैं चीजें कह रही हूं उनको वहां पे गौर भी करें, कि जब भी आपको जबर तनवीन नजर आएगी तो एक अलिफ उसके साथ लगा होगा, जिसको कि आप पढ़ नहीं रही हैं, एक अलिफ आया है सपोर्ट के लिए। लेकिन इन 2 एक्सेप्शनल केसेस में अलिफ मौजूद नहीं होगा वहां पर। वो 2 क्या है? नंबर 1 मैंने कहा था गोलता, और सेकंड है अगर कोई लफ्ज अलिफ और हमजा के साथ एंड हो रहा है तो वहां भी इस नसब की हालत में जब जबर तनवीन आती है तो अलिफ का इजाफा नहीं किया जाता, नहीं होता। तो ये 2 एक्सेप्शंस थे। ये तो हम लोगों ने किया है क्लास, आई थिंक क्लास 4 से हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था गैर मुनसरिफ अस्मा। तो हमारी आज की क्लास अब शुरू होने जा रही है। अभी तक हम पिछला ही देख रहे थे, एक रिकैप कर रहे थे। 13% ऑफ टोटल अस्मा गैर मुनसरिफ की कैटेगरी में, यानी पार्शली फ्लेक्सिबल की कैटेगरी में आते हैं।
फ्लेक्सिबल थे हमारे 85%, ज्यादातर वही थे, उन अन इन ज्यादातर हमारे यही थे। 13% अस्मा है पार्शियली फ्लेक्सिबल। अब आजकल हम उनको देख रहे हैं, जिसमें से हमने एक कैटेगरी देखी थी, वो ये थी फर्स्ट वाली, और आप लोगों में से 4 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो जो मैंने कहा था इसको पेपर पे लिख के, और किसी ऐसी जगह जहां ज्यादा वक्त आप गुजारते हैं वहां पे आप इसको पेस्ट करेंगे, जिससे अक्सर ये आपकी नजर से गुजरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोगों ने मुझे तस्वीर भेजी। तो गैर मुनसरिफ अस्मा की टोटल हमको 8 पॉइंट्स हम याद कर लेंगे, और ये 13% अस्मा भी हमारे कवर हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं इनकी अलामत क्या है। गैर मुनसरिफ अस्मा की 2 अलामतें हैं, लास्ट क्लास में आपने किया, इस क्लास में भी एक बार और सुने। ये तनवीन के साथ नहीं आते, ठीक है, तो मैं पहले तनवीन लिख के उनको क्रॉस कर दे रही हूं। ये अस्मा कभी तनवीन के साथ आपको नजर नहीं आएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये कभी जेर के साथ भी नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई। और हमने यही कहा था कि आपने मुहम्मदुन तो पढ़ा, स्वालिहुन तो पढ़ा, शुअइबुन भी देखा कुरान में, नूहुन, लूतुन, हूदुन, ये सारे अंबिया कराम के नाम आपको तनवीन के साथ नजर आए, लेकिन आपने कभी आदमुन, इब्राहिमुन, इसहाकुन, इस्माइलुन ये सब नहीं पढ़ा। टोटल 25 नबियों का जिक्र कुरान में है, जिसमें से 6 मुनसरिफ है। मुनसरिफ के साथ मैं पेश भी लगाऊं, ये पेश भी आप याद रखिएगा, वो आगे आपको पता चलेगा कि क्यों मैं कह रही हूं। और बाकी कितने बचे? 19 बचे। 19 क्या है? गैर मुनसरिफ है, 2 वर्ड वाले गैर मुनसरिफ, ये 2 शक्लें लेंगे। तो अब जब मैं गैर मुनसरिफ पढ़ा रही हूं आपको, तो चाहिए था कायदे से कि मैं आप कहती कि 19 गैर मुनसरिफ वाले याद कर लें, क्योंकि टॉपिक तो गैर मुनसरिफ चल रहा है ना, इसमें मुनसरिफ हम क्यों आपको याद कराएं। तो हम आपको 19 नबियों के नाम दें और आपसे कहें कि 19 नबियों के नाम याद कर लें। अब जब आप 19 अंबिया के नाम याद करेंगी और मैं आपसे पूछूंगी, तो हो सकता है कि 12 के बाद बाकी हमको 7 आए ही ना, हम भूल जाएं, मिस हो जाए, क्योंकि 19 एक काफी लंबी लिस्ट है। उसके मुकाबले में 6 नाम तो बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। तो तरीका हमारा हुआ एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन का मतलब ये कि पढ़ तो रहे हम गैर मुनसरिफ, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ 6 उन नबियों का नाम याद कर लेंगे जो कि मुनसरिफ है। मुनसरिफ मतलब देखिए, आप तनवीन के साथ है ना, जैसे ही आपको तनवीन नजर आ गई आप ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाए कि ये मुनसरिफ है। तो तनवीन के साथ आ रहे हैं, तो बस इन 6 नबियों के नाम हम याद कर लेंगे। अब हमको कोई भी नबी का नाम दिखाई दिया, मसलन हमसे किसी ने कहा यूनुस, यूनुस अलैहिस्सलाम, और हमसे किसी ने सवाल किया कि ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है, हम बहुत क्विक स्कैन कर लेंगे अपने फौरन दिमाग में, हम अपनी 6 नाम जो हमने बहुत अच्छी तरह याद कर रखे हैं, नूह, लूत, हूद, शुएब, सालेह, मोहम्मद, यहां हमको यूनुस नहीं मिला, हम फौरन कह देंगे कि यूनुस गैर मुनसरिफ है। तरीका समझ में आ गया सबकी? अगर किसी की समझ में नहीं आया तो माइक अनम्यूट करके बोले। तो हमने जो आपको 6 नाम याद करने को दिए हैं, ऑल्दो हम लोग कर रहे हैं गैर मुनसरिफ, लेकिन ये 6 नाम मुनसरिफ हैं। ये 6 नाम मीम पेश के साथ मुनसरिफ है। अब जब भी कोई नबी का नाम आए, सुलेमान आए, तो आपसे पूछा जाए कि ये गैर मुनसरिफ है या मुनसरिफ, तो आप सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम इन 6 नामों की लिस्ट में तलाश करें। आपको वहां नहीं मिला तो आप डिसाइड कर दें कि ये गैर मुनसरिफ है। ठीक है, तो ये तरीका है इसका। तो हमने कहा था कि इसको आप याद करेंगे, इसके साथ याद नहीं करेंगे। आपका लफ्ज क्या था वो हमको कौन बताएगा? ठीक है रिजवाना, आप बताएं। जी मैं, ज्यादातर नबियों के नाम एक्सेप्ट 6, नूह, वेरी लूत, गुड, हूद, शोएब, सोलेह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वेरी गुड, माशाल्लाह। ज्यादातर नबियों के नाम एक्सेप्ट 6, या मैंने कहा था कि सिवाय सिवाय 6, जो भी दिल चाहे आपका याद कर ले। उसके बाद आप यहाँ चली जाए, यहाँ सॉरी वेरी फनी, एक्सेप्ट 6, नूह, लूत, हूद, शुएब, सालेह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो और इनको इसी ऑर्डर में जैसे इन्होंने अभी बोला है, ऑर्डर कभी भी आप चेंज मत कीजिएगा, वरना इसमें से भी एक ड्रॉप हो जाएगा। नूह, लूत, हूद, शुएब, सालेह, मोहम्मद। तो बस ये हमारा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 1। और इसमें अगर हमको कोई नबी जिनका की नाम इस लिस्ट में नहीं है, वो सारे नबियों के नाम गैर मुंसरिफ होंगे। गैर मुंसरिफ का मतलब कि वो आदमु, आदमा, आदमा। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट तो बहुत आसान है, ये हमसे रिलेटेड है, औरतों के नाम। और बस इतना, ये भी अरबी अरबी मुअन्नस, अस्माए आलाम, मसलन, ये कितना मुश्किल हुआ ना, बस ये याद करें। और जो मैं ये लिख रही हूं अभी आप मत लिखिए, अभी आप बस देखें, बाद में स्क्रीनशॉट लेके अपनी जो आपने पीडीएफ है या बुक है आपके पास, उसमें इनको चाहे आप काटे या ना काटे, जस्ट लीव इट, काटे नहीं, लेकिन रेड पेन लेकर अपनी पीडीएफ और बुक पे कोई अलग से नोट्स नहीं बनाए, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी किताब में ही लिखेंगे आप औरतों के सब नाम, बस इतना सा। ये आसान है, ये जो लिखा हुआ है वो आसान है। क्या आसान है रिजवाना? जी मैम, आपने जो लिखा वो आसान है ना, वो सबके लिए आसान है। हो सकता है आपकी उर्दू बहुत अच्छी हो तो आपको ये भी आसान लग जाए, लेकिन हम अब जिनकी उर्दू बहुत अच्छी है वो भी यही याद करेंगे, औरतों के सब नाम। आपको कभी भी वहां पे तनवीन के साथ नजर नहीं आएंगे ये नाम। तो जैसे ही कोई नाम तनवीन के साथ नजर ना आए, एक तो ये भी इशारा है कि ये गैर मुंसरिफ है। तो औरतों के सब नाम ये पेशी के साथ नजर आते हैं, कभी जेर के साथ भी नजर नहीं आएंगे। अगर आयशा की कलम होगी ना, तो हम कहेंगे कलमु आयशता, लिखेंगे, बोलेंगे तो आयशा, वो तो साकिन कर देंगे, लेकिन जो लिखेंगे तो कलमु आयशता लिखेंगे, आयशती नहीं लिखेंगे, जैसे आपने कलमु जईदिन में देखा था ऊपर। अगर इनकी कलम होगी या इनकी चीज होगी, हालांकि निस्बत है, अब इनको जेर में जाना चाहिए, लेकिन ये जेर नहीं लेंगे, क्योंकि ये गैर मुंसरिफ। गैर मुंसरिफ मतलब दो शक्ल, इनकी लास्ट वाली शक्ल में ये जाते ही नहीं है, जेर वाली शक्ल में जाते नहीं। तो अब आपके पास हो गए 2 पॉइंट, मेरी क्लास में ही याद करती चली। ज्यादातर नबियों के नाम एक्सेप्ट 6, नूह, लूत, हूद, शुएब, सालेह, मोहम्मद। और फिर सेकंड नंबर पे पॉइंट नंबर 2, औरतों के सब नाम खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। तो खदीजतु, बस। और अब आप कोई भी दूसरा नाम मत चूज करें, क्योंकि मैं क्लास में, जैसे मैंने आज रिजवाना से पूछा, जब आपसे पूछूं तो आप सब वही बोले और आप सब वही सुने। ये हम पेश की तनवीन हमने, अरे सॉरी, पेश हमने क्यों लगाया, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि यहाँ तनवीन नहीं, बाकी हमने कोई हरकत नहीं लगाई। औरतों के सब नाम, और मिसाल एक हमने ली खदीजतु, दूसरे नंबर पे हम सब लोग मौजूद हैं। याद रखें कि ये हमारा पॉइंट है, पहले अंबिया का और दूसरे नंबर पे हम लोग आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मर्द हजरात बाद में आ रहे हैं। चलिए, गैर मुंसरिफ की थर्ड कैटेगरी क्या है? मर्दों के वो नाम जो गोल ता पर खत्म, इसको तो ऐसे ही ले लेंगे, मर्दों के नाम जो गोलता पर खत्म हो, ये पॉइंट ऐसे ही लेंगे, ये आसान लिखा है और इसी तरह याद कर लेंगे। गोलता, यहाँ पे आप चाहें तो ये बना ले, जिससे ये ताए की जगह पे ये ता बना ले, ये शक्ल हमको याद हो जाए। तो अपनी किताब में बस इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे रेड पेन से यहाँ पे लिख ले गोलता, जिससे ये आपको हाईलाइट सा हो जाए। मर्दों के नाम जो गोलता पर खत्म, उसामतु, तलहतु, हुजैफतु, मुआवियतु, हमजतु वगैरह। इसमें याद कर लेते हैं, उसामा बिन जैद का नाम हमने बहुत पढ़ा और सुना, तो उसामतु भी याद कर लेते हैं, है ना। उसामतु, बस एक ही नाम याद करेंगे, एक एक मिसाल से ज्यादा नहीं याद करेंगे, पढ़ लेंगे सब, लेकिन याद करेंगे सिर्फ एक, और क्लास में भी बोलेंगे सिर्फ वही, और अपनी टेक्स्ट बुक या प्रिंट आउट में भी
आप इसी नाम को हाईलाइट कर लें, जिससे 5 साल बाद भी जब आप देखें तो ये वर्ड ही आपको क्लियर नजर आ जाए, हाईलाइट होके नजर आ जाए। तो उसामतु, अब इसकी अरबी हालत अगर हमसे कोई पूछे कि उसामतु, अब मुझे पता है मर्दों के वो नाम जो गोलता पे खत्म होंगे वो भी गैर मुनसरिफ होंगे। तो उसामतु हम याद कर लेंगे यहाँ पे। अब फिर से हम तरीका यही है, एक नई चीज सीखेंगे और पीछे से चलेंगे। पॉइंट नंबर 1, ज्यादातर नबियों के नाम एक्सेप्ट 6, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, मैं चाह रही हूँ माइक म्यूट करके आप भी बोले। ज्यादातर नबियों के नाम एक्सेप्ट 6, नूह, लूत, हूद, शुएब, सालेह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद औरतों के सब नाम खदीजतु, मर्दों के नाम जो गोलता पर खत्म हो, एंडिंग, एंडिंग याद रखें, एंड गोलता एंड पे ही होगी, बीच में हो ही नहीं सकती। मर्दों के नाम जो गोलता पर खत्म हो, और इसका एग्जाम्पल याद किया उसामतु। अब उसामा मत बोलिएगा क्योंकि फिर तो ता गायब हो गई ना, और पेश भी बोले हम तो हमें याद रहेगा कि ये गैर मुनसरिफ है, या तनवीन नहीं आ रही है। उसामतु इतना बोलेंगी आप, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट पे भी मर्द ही हैं, और ये भी हम यहीं से याद करेंगे, मर्दों के नाम जो अलिफ नून पर खत्म हो रहे हैं, मर्दों के नाम जो अलिफ नून पर खत्म हो, मसलन उस्मान, इसमें ये नाम याद करेंगे उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से, उस्मान। अब ये देखिए उस्मान, ये अलिफ और नून पे खत्म हो रहा है, और यहाँ पे उस्मानु यानी तनवीन नहीं है, अदनानु, सलमानु, सुलेमानु, ठीक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम गैर मुंसरिफ इसलिए कि उस 6 में नाम नहीं आया, और प्लस अलिफ नून आ रहा है, ये दोनों कैटेगरी में आ गए कि उनका नाम अलिफ नून पर एंड हो रहा है। लेकिन नाम आप याद करेंगी सिर्फ उस्मानु, ठीक है, और ये पूरा करेंगी मर्दों के नाम जो अलिफ नून पर खत्म हो। हमने कर लिए 4, एक बार फिर शुरू से करेंगे, जब भी कोई नया करेंगे पीछे से, और यही तरीका आप भी कीजिएगा, एक याद कीजिए, पीछे से जाके चेक कीजिए। ये तरीका मेरी क्लास की हिफ्स का है, और यही कुरान को हिफ्स करने का भी तरीका है। जो लोग हिफ्स कर रहे हैं उनको पता होगा, एक छोटा सा फ्रेज याद करते हैं, उसको 5 बार 7 बार पढ़ते हैं, डिपेंडिंग कि हमको कितनी देर में याद होता है या हमको कितना ज्यादा शौक है, दोनों ही बात है। जिनको ज्यादा शौक होता है वो भी बहुत ज्यादा बार पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग कमजोर है, वो ज्यादा इसलिए पढ़ते हैं कि उनको शौक है कि मेरा बहुत पक्का हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। तो बिल्कुल वही हिफ्ज वाला ही तरीका रखेंगे यहाँ पे। नई चीज आएगी, आप उसको 3 बार 5 बार 7 बार जितनी बार दिल चाहे पढ़ें, और फिर पीछे से मिला के पढ़ें। डोंट गो टू नेक्स्ट वन, 5th पॉइंट पे अभी नहीं जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1, ज्यादातर नबियों के नाम एक्सेप्ट 6, नूह, लूत, हूद, शुएब, सालेह, मोहम्मद। नंबर 2, औरतों के सब नाम खदीजतु। नंबर 3, मर्दों के नाम जो गोलता पर खत्म हो, उसमें हमने क्या लिया था, उसामतु, और मर्दों के नाम जो अलिफ नून पर खत्म हो, उस्मानु, ठीक है। यहाँ पे तो 5-5 बार हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप घर में 5 बार पढ़ लीजिएगा, हर एक पॉइंट 5 बार, फिर पीछे से आ जाए, एक बार पढ़ ले, फिर नया पॉइंट आ जाएगा, इसको 5 बार और पीछे से पढ़ ले। और मजे की बात यह है कि जब हमको पता चल रहा है, तो हमें ये पता चल रहा है, जब हमें ये पॉइंट्स पता चल रहे हैं, तो लग रहा है हम इतने दिनों से कुरान पढ़ते आए और हमने कभी गौर ही नहीं किया कि अच्छा ये कभी तनवीन के साथ नहीं आते, ये कभी जेर के साथ नहीं आते। अब आप जब तिलावत करें तो ढूंढे, आप इन नबियों के नाम को ढूंढे, एक बार अपनी नजर से देख भी। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे आपको इल्म दिया जा रहा है, इल्मुल यकीन, तो आपने जब देखा तो आपको एक इल्मुल यकीन आया। जब कुरान में जाके आप देख लेंगे तो आपका ऐनुल यकीन हो जाएगा, ठीक है, देखने का भी यकीन आ जाएगा, और वो बहुत हेल्प करेगा आपको चीजों को याद रखने में। 5th पॉइंट है, फरिश्तों के नाम भी गैर मुनसरिफ हैं। गैर मुनसरिफ मतलब ये तनवीन के साथ नहीं आएंगे, और रफा में तो पेश लेंगे, नसब में जब जबर लेंगे तो जर में भी जबर की ही हालत में रह जाएंगे, जेर नहीं लेंगे।
तो जिब्रीलू, जिब्रीला, जिब्रीला, बस इतना ही। जिब्रीली कभी आपने नहीं पढ़ा। अगर मैं बोल रही हूं तो आपके कान को बहुत अजीब लग रहा होगा। मीकालू, मीकाला, मीकाला, ये 3 हालतें हुई। इसी तरह हारूतु, हारूता, हारूता, न तनवीन दिखेगी और न ही जेर दिखेगी। इसका एग्जाम्पल याद करेंगे हम जिब्रील अलैहिस्सलाम को ही, जिब्रीलू ही याद करेंगे। बस एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेंगे सब। लेकिन जब मैं अगली क्लास में आपसे पूछूंगी, आप में से किसी से, तो वो बताएंगे फरिश्तों के नाम। अब आप जिब्रील ही बोलेंगी, जिब्रीलू ही बोलेंगी, हारूतू मत बोलिएगा। एक अगर आपको डिफरेंट लेना है तो यही क्लास में ही आप माइक अनम्यूट करके सजेस्ट कर दें कि इसको नहीं दूसरे को ले लेते, वी ऑल विल टेक दैट। लेकिन एक बार जो क्लास में डिसाइड हो गया तो पूरी क्लास उसी पे कायम रहेगी, जिससे जब कभी हो सकता है आने वाली हम 15th क्लास में आपसे पूछें तो आप यही बोले और हम सब का रिवीजन हो जाए, हम सब की चीजें पक्की हो जाए। तो फरिश्तों के नाम में हमने जिब्रील का लिया। उसके बाद है शहरों और मुल्कों के अक्सर नाम। अक्सर नाम देखें आप यहाँ पे, अक्सर क्यों? क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन 97% ऑफ ये चीजें, शहरों और मुल्कों के नाम, गैर मुनसरिफ ही है। कुछ चंद ऐसे हैं जिसको कि अहले अरब तनवीन के साथ बोल लेते हैं, यानी मुनसरिफ कर लेते हैं, तो हमें भी मुनसरिफ कर लेना है। लेकिन अगर हम आपको कोई भी शहर या मुल्क एलिमेंट्री लेवल पे, क्योंकि अभी तो एक्सेप्शन बता नहीं रहे ना, तो एलिमेंट्री लेवल पे हमारी इस बेसिक कोर्स में अगर कभी भी हम कोई नाम दें आपको और आप वो देखें कि वो किसी मुल्क या शहर का नाम है, तो आप उसको क्या कर लेंगी? गैर मुनसरिफ ही लेंगी। आप ये नहीं सोचेंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 3% वाला हो। नहीं, आपको अभी वो 3% वाले दिए ही नहीं जाएंगे। और अगर दिए भी, गलती से किसी ने दे भी दिए और आप उसको गैर मुनसरिफ करेंगी तो आपके 100% हुए। ठीक है। शहरों मुल्कों के बजाय मैंने जो याद किया है वो मुल्कों और शहरों के नाम, क्योंकि मुल्क पहले आते हैं और शहर उनके अंदर आते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप भी मुल्कों और शहरों याद कर लें, क्योंकि ये चीज आगे भी एक जगह आएगी तो फिर वो ऑर्डर परेशान करेगा। मुल्क पहले होते हैं, मुल्क के अंदर शहर होते हैं, तो आप भी ऐसे ही याद कर लें, मुल्कों और शहरों के नाम। ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? पहला था हमारा नबियों के नाम। दूसरा, तब देखिए अब शॉर्ट में हम रिवाइज कर रहे हैं जैसा कि वक्त की कमी की वजह से। दूसरा था हमारा औरतों का नाम। तीसरा था मर्दों के नाम जो गोलता पे खत्म हो। चौथा था मर्दों के नाम जो अलिफ नून पर खत्म हो। और पांचवा था फरिश्तों के नाम। बिल्कुल ऐसे ही आपको याद होना चाहिए जैसे अगर आपके 7 भाई बहन हैं, तो अगर मैं लाइन से आपसे पूछूं तो आप उसमें ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे, आप लाइन से ही उनके नाम बताएंगे। बिल्कुल इसी तरह याद कर लेने हैं कि लाइन से आए हमारे पास। इससे हमें वो 8 में से कब जब भी पूछा जाएगा तो 8 आउट ऑफ 8 पूरे आप बताएंगे, क्योंकि लाइन से आपने याद किए, कोई मिस नहीं होगा। छठे नंबर पे क्या है? मुल्कों और शहरों के नाम। इसमें मक्कतू ही हम याद करेंगे, है ना? सबका फेवरेट यही होगा, मक्कतू। ठीक है। तो मुल्कों शहरों के नाम देखिए आप, ये सारे सिंगल हरकत से एंड हो रहे हैं। ये इसकी निशानी है, अलामत है कि ये गैर मुनसरिफ है। और अब अगर हम इनकी गर्दान आपसे पूछें, गर्दान का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बोलते थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाउन, उन्हीं को डिफरेंट फॉर्म की जगह अरबिक में गर्दान यूज होता है। जैसे इंग्लिश में भी हम कहते थे गो वेंट गॉन, ये गर्दान हुई ना, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब हुआ। तो इसी तरह से अरबिक में भी जो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इस्म है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेल है, इनको गर्दान कहते हैं। ये कोई ऐसा कोई अजूबा वर्ड नहीं है। तो गर्दान क्या है बोलेंगे हम? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मक्कतू। क्या होगा आप एराब में? मक्कतू
मक्कता मक्कता, कभी भी मक्कती नहीं पढ़ेंगी आप और ना बोलेंगी। तो ये हो गई हमारी 6th कैटेगरी, मुल्कों और शहरों के नाम। तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक या प्रिंट आउट पे इसको काट के मुल्कों और शहरों के नाम कर ले और इसी ऑर्डर में याद कर ले, मुल्कों और शहरों के नाम, प्लेसेस, ठीक है, प्लेसेस एक दिमाग में अगर ऐसे रखना। उसके बाद ये कुछ वजन है, इन औजान को हम करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अगली क्लास में इन वजन पर आने वाले इस्म भी क्या होते हैं, गैर मुनसरिफ होते हैं। ये हमेशा सिंगल हरकत के साथ आते हैं और जेर कभी नहीं लेते, ठीक है। तो इसको करेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में। ये 2.7 और 8 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन्हीं को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। मैं पढ़ती हूँ और मेरे साथ साथ आप सब लोग माइक अनम्यूट कर लें और करें। ज्यादातर नबियों के नाम एक्सेप्ट 6, नूह, लूत, हूद, शुएब, सालेह, मोहम्मद। पढ़िए आप सब लोग। ज्यादातर नबियों के नाम एक्सेप्ट सिक्स मोहम्मद। ये तो सबको याद है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी तरह। उसके बाद सेकंड नंबर पे औरतों का था। औरतों के सब नाम खदीजतु, औरतों के सब नाम खदीजतु। इसको 3 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़िए। औरतों के सब नाम औरतों के सभी नाम खदीजतु। माशाल्लाह। अब ऐसा कीजिए, पहले पॉइंट के साथ इसको मिला के पढ़िए। ज्यादातर नबियों के नाम लूत, शुएब, सालेह, मोहम्मद। माशाल्लाह, वेरी गुड। अब अगर मैं स्क्रीन हटा दूं तो आप ये 2 पॉइंट बोल देंगी? जी ठीक है, चलिए बोलिए। ज्यादातर नबियों के नाम शोएब, सालेह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, वेरी गुड। और एग्जाम्पल भी आप सब लोग बिल्कुल सही वाले ही ले रही हैं, माशाल्लाह। थर्ड पॉइंट पे हमने कहा कि फर्स्ट अंबिया, सेकंड पे औरतों को मिल गया पोजीशन, थर्ड फोर्थ पे मर्दों के नाम है। तो मर्दों के नाम जो गोलता पर खत्म हो, उसामतु, 3 बार पढ़िए। मर्दों के नाम जो गोलता पर खत्म हो, चले अब ऐसा करिए कि इन तीनों पॉइंट्स को पढ़िए शुरू से। ज्यादातर नबियों के नाम माशाल्लाह, वेरी गुड। आसान लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कुरान में इन सब नामों को देखें भी, और देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम हमेशा पेश या जबर के ही साथ है, कभी तनवीन के साथ नहीं है। इसी तरह देखें दूसरे औरतों के नाम, देखें मरियम अलैहिस्सलाम का नाम देखें, कुरान में सर्च करें, कभी भी आपको तनवीन के साथ नहीं मिलेगा और जेर के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मर्दों के नाम जो अलिफ नून पर खत्म हो। मसलन जो अलिफ नून पर खत्म हो, उस्मानु,
ختم ہو جو الف نون پر ختم ہو. مردوں کے مردوں کے نام جو الف نون پر ختم ہوں. جو الف نون پر ختم ہو. مردوں کے نام جو الف نون پر ختم ہو. مردوں کے نام جو الف نون پر ختم ہو. اب ایسا کریے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب ایسا کرے پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 اپنی انگلی پہ جیسے کرتے ہیں نا کہ فرسٹ پوائنٹ پہ آپ دیکھیں انبیاء، سیکنڈ نمبر پہ عورتوں کے نام، تھرڈ پہ مردوں کے گولتا کو دماغ میں رکھیے، اور پھر فورتھ پہ مردوں کے نام الف نون. یہ 4 پوائنٹ کو ایک ساتھ پڑھیے. زیادہ تر نبیوں کے نام ایکسپٹ صالح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب نام جو بولتا پر ختم ہوتے، نام جو بولتا پر ختم ہوتے، نام جو الف نون پر ختم ہو، جو نام جو الف نون پر ختم ہو، عثمان. شعیب، صالح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب عورتوں کے نام. اب اس کے بعد جی ہاں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے چاروں پوائنٹس بہت صحیح پڑھے. پہلے نمبر پہ میں پھر بار بار میں بھی بولتی ہوں کہ پہلے نمبر پہ انبیاء، سیکنڈ نمبر پہ عورتوں، تھرڈ نمبر پہ مرد گولتا، فورتھ نمبر پر مرد الف نون. ایسے شارٹ میں بھی دماغ میں رکھا جا سکتا ہے، زبان پہ پورا ہم پڑھ کے نکالیں گے، یاد کریں گے، اور ایک کوئک ریویژن کے لیے ایسے چھوٹے میں. اس کے بعد اب جب ختم ہو گئے، دیکھیں نبیوں کا ہو گیا، عورتوں کا ہو گیا، مردوں کے دونوں پوائنٹس ہو گئے. اب فرشتوں پہ آ جائے. فرشتوں کے نام چلیں، بس فرشتوں کے نام جبریلو 3 بار پڑھیں. فرشتوں کے نام جبریلو. اب اوپر سے اب پہلا پوائنٹ یاد رکھیں، پہلا پوائنٹ انبیاء، سیکنڈ پوائنٹ عورتوں، تھرڈ پوائنٹ مرد گولتا، فورتھ پوائنٹ مرد الف نون، فرشتوں کے نام پوائنٹ فرشتے. یاد رہے گا؟ چلیں پڑھیں یہ 5 پوائنٹ پڑھیں اب بنا دیکھے. زیادہ تر نبیوں کے نام ایکسپٹ ہود، شعیب، صالح اور محمد. عورتوں کے نام کے نام گولتا پر ختم، مردوں کے نام الف نون پر ختم، کے نام جو الف نون پر ختم، کے نام جبریلو. کے نام جبرائیل، کے نام جبریل، کے نام ماشاءاللہ فرشتوں کے نام جبریلو. 5 پوائنٹ آپ کے ہو گئے. فنگر پہ ایسے آپ موو کریں گے، فنگر پہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ انگلیوں کے ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں 1 2 3 4 5، ایسے پوری فنگر پہ آپ کے ہونی چاہیے، فنگر ٹپس پہ. اس کے بعد ملکوں اور شہروں کے نام. لاسٹ ہمارا جو آج کا ہے وہ ہے ملکوں اور شہروں کے نام مکتو. 3 بار پڑھیں اس کو. شہروں کے نام مکہ، دیکھیں اب یہاں پہ میں ایک بار لکھتی ہوں، یہاں پہ دیکھیں نمبر 1 نبی. ایسے انبیاء لکھ سکتے ہیں لیکن ہم انبیاء لکھ سکتے ہیں، ہاں لیکن ایک شارٹ میں ہم نے نبی لکھ دیا، دیکھنے میں آسان ورڈ لگے. پھر یہاں پہ عورت، پھر یہاں پہ مرد گولتا، پھر مرد الف نون، پھر فرشتے، ملک اور شہر، اور پھر ملک اور شہر ہے نا. اس طرح یاد کرنا آسان ہو گیا. میری ایک بات آپ ضرور یاد رکھیں کہ آپ آرڈر ایسا نہ ہو کہ چلیے آپ کو سیکنڈ والا یاد نہیں آیا تو آپ چھوڑ دیں اس کو، تھرڈ پہ چلی جائیں اور یہ سوچیں کہ سیکنڈ والے کو ہم آخر میں پوچھ کے نکالیں گے. نہیں، اگر آپ کو سیکنڈ والا بھولتا ہے
تو آپ اپنی کتاب یا جہاں کہیں بھی آپ نے نوٹ کر رکھا ہے اس کو کھولیں گے اور اس کو دیکھ کے اس کو سیکنڈ نمبر پہ ہی یاد رکھیں گی. اگر آرڈر یاد رہا, آپ دیکھیں یہ ہم نے پتہ 2 سال پہلے شاید یاد کیا ہو, لیکن چونکہ آرڈر میں یاد کیا اس لیے آپ سوتے جگتے کبھی بھی پوچھیں میں بتاؤں گی. کیوں بتاؤں گی؟ کیونکہ آرڈر میں یاد ہے, مجھے سوچنا نہیں ہے اس کے لیے. تو آرڈر از ویری امپورٹنٹ. میری کلاس میں میں بار بار کہوں گی, کوئی بھی چیز آپ یاد کر رہی ہیں آرڈر بہت امپورٹنٹ ہے. تو آرڈر کے ساتھ یاد کریں گے انشاءاللہ, زندگی بھر یاد رہے گا آپ کو. تو یہ 6 چیزیں اگلی کلاس میں سارے ہی لوگ, جتنے لوگ آپ ہیں, کیونکہ اگلی کلاس میں ہمارے پاس زیادہ کام نہیں ہے, یہ میرا آدھے گھنٹے کا کام ہے جو میں آدھے گھنٹے میں آپ کو کلاس میں ہی یاد کراؤں گی, 7th پوائنٹ اور 8th پوائنٹ. تو یہ میرا آدھا گھنٹہ لے گا, اور اگلے آدھے گھنٹے میں ہر لڑکی آپ میں سے یہ 6 پوائنٹ انڈیویجولی الگ الگ آپ لوگ سنا رہی ہوں گی بغیر دیکھے. ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے کیا کریں گی, کام کرتے کرتے اپنے کپڑے فولڈ کر رہی ہیں, کپڑے آئرن کر رہی ہیں, کچھ بھی کر رہی ہیں, اور ایسے ہی بولیں گی جیسے آپ ابھی کلاس میں بول رہی تھی. تو بالکل اسی طرح سے کہیں پہ پورا یہ 6 پوائنٹس آپ انہی آسان الفاظ میں لکھ کر لگائیں گی اور پکچر کھینچ کے مجھے بھیجیں گی. جو لوگ بھیجیں گے میں ان کا نام انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں شیئر کروں گی کہ ان لوگوں نے بھیج دیا. یہ کر رہیں گی آپ, نام لکھ کے بھیجنے والا کام آپ اگلے 24 آورس کے اندر کر لیں. تو 24 گھنٹے بعد کل کے وقت میں آپ لوگوں کا نام شیئر کروں گی, اور ہو سکتا ہے کہ پکچرز بھی شیئر کروں جو آپ بھیجیں مجھے انشاءاللہ گروپ میں. تو لکھ کے کسی ایسی جگہ لگا لیں جہاں پہ آپ زیادہ تر ہوتی ہیں, تو یہ بھی 6 پوائنٹ آپ کے ایسے لائن سے یاد ہو جائے. جزاک اللہ خیر. کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.